Okay. Presenting. Or so basically, अगर आपको basics of Kotlin, just to know basics about Kotlin, because I think development is more of a development side than that of programming. क्योंकि कई सारे फंक्शंस Kotlin में ऐसे निकल के आते हैं जो उसके डॉक्यूमेंटेशन में नहीं मिलते हैं, जो बेसिक C++, जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस में नहीं मिलते हैं, जो केवल एंड्रॉइड स्पेसिफिक होते हैं. So for example, if you wanna just know about what actually Kotlin is, practice some basic question, you can come here. I would like Rudra to please drop the link in the chat box of this very website, kotlinlang.org. So यहाँ पे आपको बेसिक डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, क्योंकि आई प्रेफर दैट वीडियो में कम एंड वीडियो में गो, बट डॉक्यूमेंट लास्ट फॉर एवर. क्योंकि वीडियो आउटडेटेड हो सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो अगर यूट्यूब पे है तो आप उसको रियल टाइम में अपडेट नहीं कर सकते. यू नीड टू अपलोड ए न्यू वीडियो, बट सेम कैन नॉट बी सेड फॉर डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन आर अपडेटेड इन ऑलमोस्ट रियल टाइम, ऑलमोस्ट नॉट. So here you can cover the basic syntax like function, variable, string, array, maps, dynamic, and every type of thing that is associated with programming as well as development. So that was basic for Kotlin. We'll cover Kotlin session sometime later as well, because yeah, it is necessary thing. Now coming back to the slide, coming back to our presentation. So basically now you know about what actually Kotlin programming languages is. So if anybody have any kind of doubts, please raise your hands currently. Okay, Lucky. Let me how to would you Ruth, would you unmute him? Now let me unmute you guys so that we can. Okay, so anybody who wanna speak can unmute themselves and ask any query. Hello, sir. Hello. Hello. Sir, I have one basic question. Can we learn Kotlin without knowing Java? No. Anyone else? Sir, Yes. sir, is there the platform on which we can make apps that will work on both Android and iOS? That basically ऐसे जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो क्रॉस प्लेटफॉर्म होते हैं. करेंटली 2 पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि फ्लटर और रिएक्ट नेटिव. तो आप मतलब इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेशन, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट और फ्लटर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फर्क होता है. क्योंकि जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट होती है वो 2 फाइल्स पे बेस होती है, जबकि फ्लटर डेवलपमेंट केवल 1 फाइल पे. मतलब दोनों के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस है. तो अगर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो यू कैन अडॉप्ट फ्लटर. करेंटली मैं मेजॉरिटी से एक फ्लटर डेवलपर ही हूँ. एंड्रॉइड भी था, एंड्रॉइड भी हूँ, पर आई वर्क मेजॉरिटी of my part on Flutter. Anyone else? Okay, so now I would like final. Okay. Okay, so now you know about Kotlin programming language, Java programming language, and basics of Android. Now comes one more part, that is Android Studio. Now I would like Rudra, my mate, to take over so that he can explain you about the basics of Android development and everything related to that. So Rudra, would you take over, please? Yep, sure. Hello, everyone.
So, just a second, I'll share my screen. Is the screen visible to everyone? The slideshow? Okay. Okay, so I can start. So, hello everyone. एंड्रॉइड के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में तो पता कर लिया, बट एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते कहाँ हैं, जगह कहाँ है ना, वो भी तो जानना जरूरी है. To do any work efficiently, we need to have right tools for it, है ना. You can't expect anyone to cut fruits faster and in better manner using a scissor instead of knife. कभी देखा है किसी को सेब चाकू से काटते हुए? ओ, चाकू की जगह कैंची से काटते हुए? बोलोगे ना क्या पागल है. तो उसी तरह we need to have right tools for Android development to for better and efficient development process. Android Studio is the IDE, integrated development environment, provided by Google for us to do everything related to Android on it. So Android Studio में क्या होता है? Basically जो भी features, जो भी processes, जो भी frameworks हमको चाहिए होती है Android development के लिए, वो सब Android Studio में पहले से installed आती हैं. वो सब हमारे help करने के लिए रहती हैं, ताकि हम जो भी हमें काम हो वो सब हम कर सकें. Basically Android डेवलपमेंट में क्या है, एक छोटा सा प्रोसेस नहीं है. जैसे कि तुम C++ में कोड करते हो, तो तुम कंपाइल करोगे, बाइनरी फाइल क्रिएट होगी, उसको रन करोगे, सिंपल प्रोसेस है. बट एंड्रॉइड एपीके बनाना, फिर एपीके रन करना काफी लंबा प्रोसेस होता है. जैसे कि अभी पुलकित तुमको बताया कि वो लिनक्स सिस्टम बेस्ड है, तो पहले हम उसके लिए कोड करते हैं, फिर उसको मोबाइल पे चलाने के लिए उसको अडेप्ट करते हैं, तो काफी लंबा प्रोसेस रहता है. ग्रेडल सिंक करना होता है, ग्रेडल बिल्ड करना होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन होती है. तो लाइक तुम कोडिंग तो कर सकते हो कहीं पे भी. तुम कोड चाहे जहाँ लिखो, चाहे नोटपैड पे लिखो, VS कोड पे लिखो, सबलाइन पे लिखो, एटम पे लिखो, नैनो पे लिखो, कहीं पे भी लिखो. बट ये सारी तुम्हें कोड कंपाइल करके रन करने के लिए ये सारी प्रोसेसेस करनी पड़ेगी, काफी लंबी प्रोसेस है. ये सारी माथापच्ची ना करनी पड़े, उसीलिए हम यूज करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो. ये सारी चीजें वो हमें अपना बैकएंड में, अपने इंजन में पीछे से करके देता है. हमें बस कोड लिखना है, रन करना है, और वो ये सब चीजें हमारे लिए कर देगा. ठीक है. तो एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए सबसे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स अपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना रहेगा. डाउनलोड लिंक्स मैं चैट बॉक्स में डलवा दे रहा हूँ, वहां से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो. सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड्रॉइड स्टूडियो की काफी हैवी होती हैं, एक बार तुम देख सकते हो स्क्रीन पे मेरी उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स अपने अपने ओएस के हिसाब से. उसके बाद हम एक बार जल्दी से इंस्टॉलेशन प्रोसेस के ऊपर जाएंगे. ज्यादा फर्क नहीं होता इंस्टॉलेशन प्रोसेस में. जैसे नॉर्मल एप्स एंड एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तुम अपने अपने सिस्टम पे, वैसे ही करना होता है बेसिकली. ठीक है. तो एंड्रॉइड डाउनलोड लिंक चैट बॉक्स में डाल देना पुलकित. तो उसके बाद हम देख लेते हैं एक बार डाउनलोड प्रोसेस. तो ये हमारी डाउनलोड स्क्रीन की लिंक है. विंडोज यूजर्स को क्या करना रहता है, जब तुम्हारा डाउनलोड आएगा तो ऐसी स्क्रीन जैसे नॉर्मल खुलती है वही खुलेगी. नॉर्मल प्रोसेस की तरह सारे सेटिंग्स अपने हिसाब से एडिट करके चालू कर लो, और बस रन हो जाएगा, सिंपल. ठीक है. सिंपल प्रोसेस है. नॉर्मल डायलॉग बॉक्सेस जैसे आते हैं, जैसे नॉर्मल तुम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा तुमने, उसी तरह प्रोसेस होता है. हाँ, एक बात का ध्यान रखना, काफी बड़ा सॉफ्टवेयर है, काफी ज्यादा नेटवर्क बैंडविड्थ लग सकती है एंड टाइम लग सकता है, तो अपना इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल रखना एंड थोड़ा टाइम के लिए रख लेना. सिर्फ विंडोज नहीं, मैक ओएस एंड लिनक्स वालों के लिए भी ये बात है, क्योंकि काफी बड़ा सॉफ्टवेयर है तो टाइम लग सकता है, नेटवर्क काफी लग सकता है. मैक वालों के लिए और इजी प्रोसेस है, बस इंस्टॉल करना है,
यहाँ से पकड़ के यहाँ स्लाइड कर दो, हो जाएगा तुम्हारा इंस्टॉल, फिर चालू कर लेना है। ठीक है, अब मैं एक बार एंड्रॉइड स्टूडियो तुम्हें डाउनलोड कर लेना, तुम लोग काफ़ी टाइम लगेगा। मैं एक बार तुम्हें डाउनलोड करके वो बता देता हूँ, वो मतलब रन करके दिखाता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो होता क्या है। सो एंड्रॉइड स्टूडियो एक कंप्लीट आईडी है विद एवरी फीचर यू नीड फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट, है ना, मैंने बताया। तो वो काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है। यू ऑल वुड नीड क्वाइट अ बिट ऑफ टिंकरिंग अराउंड, थोड़ा सेटिंग्स के साथ, फीचर्स के साथ खेलोगे, तब जाके तुम्हें थोड़ा हैंग आएगा एंड्रॉइड स्टूडियो का। ठीक है, एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। स्क्रीन दिख रही है मेरी? अब देखिए, Yes, it's visible. ओके। सो ये है बेसिक हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो का स्क्रीन। ठीक है, ये देखो, 3 मेन तुम्हें स्क्रीन दिख रही होंगी यहाँ पे, है ना। तो ये जो हमारा है ना, जहाँ पे तुम्हें एक कोड दिख रहा है, इसको कहते हैं हम कोड व्यू। ठीक है, यहाँ पे हमारा पूरा कोड रहता है। ये राइट साइड में देखो, यहाँ पे तुम्हें कुछ हाई एंड्रॉइड दिख रहा है लिखा हुआ, ये हमारा है डिजाइन व्यू। एंड ये लेफ्ट में देखो, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फोल्डर टाइप्स, कुछ हायरार्की टाइप बनी हुई है ना, ट्री टाइप। ये है हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो मेन चीज हमारा यही काम होता है, मेन हमारा इन्हीं 3 में काम रहता है। हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बंद करते हैं, एक बार एक एक करके सब देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, कोड, स्प्लिट एंड डिजाइन। जब हमारा ऑप्शन कोड पे है तो हमारा सिर्फ कोड व्यू ओपन है, हम पूरा अपना कोड कर सकते हैं। ये डिजाइन व्यू है, डिजाइन व्यू एक्चुअली जो हम कोड कर रहे होते हैं उसको यूआई पे जब हमें प्रीव्यू चाहिए होता है, उसके लिए होता है ये डिजाइन व्यू। यहाँ पे प्रीव्यू आते हैं, यहाँ पे हम जो जो यूआई चेंजेस करेंगे, जो जो चेंजेस बनाएंगे, जो यूआई बनाएंगे तब शो होगा। ठीक है, एंड ये है स्प्लिट व्यू, उसमें कोड और ये स्प्लिट हो जाता है बेसिकली, तो नाम से पता चल ही रहा होगा। ठीक है, ये हमारा बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें सबसे ज्यादा काम करना है वो वाला पार्ट है। फिर है हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। अब देखो, जो भी तुम्हारा फाइल्स हैं, सारी की सारी फाइल्स सेव हुई हैं फाइल मैनेजर में, बट उनको देखने का ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एंड्रॉइड में। जैसे कि अभी मेरा ऑप्शन एंड्रॉइड सिलेक्टेड है, तो देखो जब मैं ये ओपन करूंगा, ये 2 फोल्डर्स दिख रहे हैं, ऐप और ग्रेडल स्क्रिप्ट। जब मैं खोलूंगा तो ये अलग अलग फोल्डर्स में डिवाइड रहेंगे, अलग अलग फोल्डर्स में अलग अलग वैल्यूज रहेंगी। जैसे इसमें मेरा activity2.kt एंड मेन एक्टिविटी फाइल है, यहाँ पे और फोल्डर्स हैं अलग अलग, है ना। उसी तरह हमारे पास और भी तरह के होते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। जैसे हम एज अ प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एज अ प्रोजेक्ट, एज पैकेजेस है, एज ओपन फाइल्स है, स्क्रैचेस कंट्रोल, काफी सारी चीजें हैं। अलग अलग फीचर, अलग अलग यूज केसेस के लिए अलग अलग काम आता है। जैसे अगर तुम्हें सारी की सारी फाइल्स देखनी है कि कौन कौन सी फाइल किस किस ऑर्डर में है, जब हम फाइल मैनेजर खोलेंगे तो हमें कैसे दिखेंगी, उसके लिए हम प्रोजेक्ट व्यू यूज करते हैं। जब तुम अपना ये प्रोजेक्ट लोकेशन में जाओ, फाइल मैनेजर में जाके खोलोगे, वो एग्जैक्टली ऐसा ही दिखने वाला है। ये तुम्हारा फोल्डर का नाम होगा, उसके अंदर ये फोल्डर्स होंगे, उन फोल्डर्स के अंदर ये फोल्डर्स होंगे, ये फाइल्स होंगी। ठीक है, ये लाइक तुम्हें जब कोई स्पेसिफिक फाइल ढूंढनी है, काफी इंपॉर्टेंट फाइल ढूंढनी है, या जो नॉर्मल कोडिंग वाली फाइल्स होती है उनके अलावा कोई फाइल्स ढूंढनी है, जैसे ग्रेडल फाइल्स हो गया, रूल्स फाइल हो गया, गेट इग्नोर हो गया, तब ये स्ट्रक्चर काफी काम आता है। मेनली हम एंड्रॉइड वाला खोल के रखते हैं बिकॉज इट विल हेल्प अस फोकस, क्योंकि ये सिर्फ हमारे जो डेवलपमेंट प्रोसेस से रिलेटेड फाइल्स होती हैं ये शो करता है। जैसे कि जावा में ये हमारा अपना मेन कोड वाला फाइल्स हो गया, रिसोर्स फाइल्स हो गई यहाँ पे, है ना। अच्छा, अब हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की बात कर ही रहे हैं तो हम फोल्डर्स की भी एक बार बात कर लेते हैं, कैसे स्टोर होते हैं। जो हमारा मेन लॉजिक फाइल्स होती है ना, वो हमारे जावा स्लैश कोटलिन या कुछ भी नाम दे दें यहाँ पे, उसी उन्हीं फाइल्स में साथ में स्टोर होती है। जैसे यहाँ पे activity2.kt और मेन activity.kt फाइल्स में साथ में स्टोर है। ठीक, इनके अलावा जो बाकी रिसोर्सेज यूज होते हैं, जैसे कुछ कुछ में इमेजेस यूज होंगी, कुछ प्रोजेक्ट्स में लाइक हमें एनिमेटेड GIF, इमेजेस, लोगोस, काफी सारी चीजें होती हैं। वो सब चीजें हम रेस्ट फोल्डर में डालते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रिसोर्स। ठीक, यहाँ 4 टाइप की वैल्यूज हैं, ड्राइबल, मिपमैप, वैल्यूज एंड एक्सएमएल। तो ड्राइबल्स एंड मिपमैप यूजुअली हम ये पिक्चर्स, GIF, इमेजेस वगैरह स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। बेसिक डिफरेंस इन दोनों में काफी छोटा माइन्यूट्स होता है। जो इनपुट फॉर्मेट या फाइल फॉर्मेट जो होता है ना, उस पर डिपेंड करेगा कि हमें ड्राइबल में सेव करना है, मिपमैप में। उसके बाद हमारा आता है वैल्यूज फोल्डर। जैसे कि वैल्यूज नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज की वैल्यू होगी, तो उसमें एक्चुअली होता क्या है कि जब हम, अगर मैं फाइल खोल के दिखाऊँ colors.xml,
तो यहाँ पे मैंने नाम दे रखा है एंड यहाँ पे कलर का कोड दे रखा है। तो हम एक पर्टिकुलर नाम के आगे एक पर्टिकुलर कलर या एक चीज असाइन कर देते हैं, उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे वैल्यूज होती हैं। हम स्ट्रिंग को नाम से एक स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं, ताकि हम उसको डायरेक्ट इतने बड़े कोड, क्योंकि ये याद करना पॉसिबल नहीं होता, कौन ही याद रखेगा। तो हम सीधे नाम से, क्योंकि नाम याद रहेगा, हमने खुद दिया नाम, तो ये नाम से हम उसे यूज कर सकें पूरे कोड बेस में, उसके लिए होता है। ये पूरे कोड बेस में ये नाम जब भी हम यूज करेंगे वो हमेशा इसको असाइन कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा फोल्डर आता है एक्सएमएल फोल्डर। बल्कि तुमको बताया था कि लाइक अभी हम कंपोज पढ़ रहे हैं, बट कंपोज के पहले जब जावा एंड कोटलिन हुआ करता था तो यूआई के लिए एक्सएमएल फाइल्स यूज होती थी, तो वो यूआई फाइल्स यहाँ पे सेव होती हैं, ठीक है। क्लियर एवरीवन? ओके, सो हमारा बेसिक एंड्रॉइड स्टूडियो की जो हमें यूज होंगे वो वाले प्लेसेस पता चल गई कहाँ हमें क्या करना है। बट एंड्रॉइड स्टूडियो जब हम रन करेंगे शुरू में, तो क्या कैसे चलेगा ये तो हमें पता ही नहीं है। तो एक बार मैं वो बताता हूँ तुमको शुरू से, तुम लोग को। ये होता है हमारा फर्स्ट स्क्रीन जो आएगा एंड्रॉइड स्टूडियो पे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्रोजेक्ट्स, कस्टमाइजेशंस, प्लगइन्स, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन, वीसीएस। ये प्रोजेक्ट खोलने की 3 ऑप्शंस हैं, या तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट करें, या हमारे पास पहले से ही प्रोजेक्ट का फोल्डर है वहां से खोलें, या हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसे गेट, गिटहब या गिटलैब से डाउनलोड कर लें उसे। तो अभी मैं एक नया प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ तुम लोग को, ठीक। जब भी हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। तो एंड्रॉइड स्टूडियो क्या करता है कि ये जो है ना, ये ऑप्शन दिख रहे हैं तुम्हें, ये एक्चुअली जो हमारे फोन की या जो भी हम ऐप बना रहे हैं उसकी जो स्क्रीन होगी, उसके लिए हमें एक बॉयलर प्लेट कोड प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि जब तुम बनाओगे कोई ऐप, तो एक स्क्रीन होगी, उस स्क्रीन पे जैसे यहाँ पे हम बेसिक एक्टिविटी अगर सेलेक्ट कर लें, तो ये एरो बटन, ये नैव बार एंड ये ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये तीनों वो पहले से बना के दे देगा। उसी तरह बॉटम नेविगेशन चूज कर सकते हैं। अभी के लिए हम एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी चूज करके आगे बढ़ते हैं। ये है तुम्हारा एप्लीकेशन नेम पहला, उसके बाद तुम्हारा पैकेज नेम। तो पैकेज नेम क्या होता है, तुम्हारे ऐप को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रहता है। तुम्हारा ऐप जब प्ले स्टोर पे या कहीं पे पब्लिश होगा तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसके लिए रहता है। एक पैकेज नेम का फॉर्मेट हमेशा ये रहेगा कॉम डॉट, यहाँ कंपनी नेम आता है, तो जहाँ मैंने रुद्र लिखा है, कंपनी नेम के बाद यूजुअली यूजर नेम एंड देन एप्लीकेशन नेम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कंपनी नेम gdsc.rudr.my application, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे प्रोजेक्ट की लोकेशन एंड देन लैंग्वेज। अभी हमने कंपोज एक्टिविटी चूज की है तो हमारा कोटलिन पहले से सिलेक्टेड है एंड फिक्स हो गया है। बट अगर हम एम्प्टी एक्टिविटी या कोई और सी एक्टिविटी चूज करते तो हमें 2 ऑप्शन मिल जाते, या तो हमें कोटलिन करना है या जावा करना है, ठीक है। क्योंकि दोनों ऑप्शन से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं एंड फिनिश कर देंगे। तो बेसिकली जब ये फिनिश पे दबाते हैं तो बॉयलर प्लेट कोड जनरेट होता है, मैंने बताया ना। तो बॉयलर प्लेट जनरेट होने के अलावा भी बहुत सारे काम हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो करता है। जैसे तुम यहाँ नीचे देखोगे तो ग्रेडल सिंक कर रहा है, ग्रेडल बिल्ड कर रहा है, इंडिसेस अपडेट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, बहुत सारी चीजें। वो काफी सारा बैक अपना यूआई के बैक में बहुत सारा काम कर रहा होता है। तो जब हम फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट ओपन करते हैं ना, तो उसको सेटअप होने में काफी टाइम लगता है। तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं एंड तब तक कुछ डिस्कस कर लेते हैं। समझ आ रहा है सबको? माइक माइक म्यूट है क्या सबका? हाँ, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, यू कैन नाउ अनम्यूट योरसेल्फ। चलो जब तक ये सर यस सर। हाँ, अरे एक एक करके क्या हुआ? समझ आ रहा है सबको? सर मेरा सुन लो। यस सर। यस सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? यस सर आ रहा है। हो रही है सर प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है बताओ? यस सर आ रहा है। पैकेज नेम सेम रखेंगे हम लोग आपके जैसा। नहीं, पैकेज नेम तुम्हें अपना चेंज करना रहेगा ना, मैंने बताया ना। सर थोड़ा धीरे धीरे। अच्छा, ज्यादा तेज हो रहा है क्या? सर मैं इंस्टॉल करके रेडी बैठा हूँ सर, एक बार आप वो बताएंगे कौन सी अपन ने टेम्पलेट ली थी? हमने कंपोज एक्टिविटी चूज की थी। एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी। हाँ, एमडी कंपोज एक्टिविटी। ओके सर, थैंक यू। अरे तेज हो रहा है तो कोई बात नहीं भाई, फिर से बता देंगे, फिर से पूछ लेना सब। जहाँ भी कंफ्यूजन हो फिर से पूछ लेना।
पैकेज नेम का किसी ने पूछा तो ठीक मैंने है तुमको सर। बताया था कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, तो तुम्हारा यूनिक होना चाहिए पैकेज नेम, जैसे com डॉट कंपनी नेम डॉट तुम्हारा यूजर नेम डॉट तुम्हारे एप्लीकेशन का नेम। ठीक है, समझ रहे हो ना? हेलो सर, हाँ, क्रेडल सिंह किधर आ रहा है? रिडल्सिंग एरर आया है, तुम्हारे इंस्टॉलेशन में कुछ एरर आई होगी। एक बार ध्यान से देख लो, या तुमने कोड किया हुआ कुछ गलत। वो सब चैट्स अभी हम बाद में देख लेंगे। तुम चैट्स तुम लोग अपना चैट बॉक्स में डाल सकते हो। सब स्क्रीन दिख रही है ना अभी? तो देखो, हमारा ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो गया। अब हमारा एक कोड जनरेट हो गया पहले प्लेट। ठीक है, ये सबको हेलो एंड्रॉइड दिख रहा है साइड में। तो ये जो हमने एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट की, डिकम्पोज की, तो उसके लिए एंड्रॉइड स्टूडियो ने हमारा ये पूरा बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, बैकएंड में काफी सारा कोड उसने जनरेट किया है। जैसे कि क्रेडल स्क्रिप्ट्स हो गई, मैनिफेस्ट फाइल हो गई, यूआई थीम, काफी सारी चीजें जनरेट की हैं, इसलिए इतना टाइम लगता है इसको प्रोसेस होने में। ठीक है, अब हमारा आ गया, तो चलो कोड में थोड़ा चेंजेस करके देख लेते हैं। हेलो को हाई कर देते हैं। ठीक है, एंड फिर से ग्रेडल बिल्ड रन कर लेंगे। जब भी हम चेंज करेंगे, हमें प्रीव्यू करने के लिए फिर से सिंक करना पड़ेगा, तभी जाके सिंक होता है। जब तक सिंक होता है तब तक हम बाकी ऑप्शन एंड्रॉइड स्टूडियो के देख लेते हैं। काफी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे तुमको यहाँ पे, है ना? बहुत सारे। तो ये देखो, एक लाइन से चलते हैं। ये सब तो नॉर्मल हमारी फाइल ओपन एंड सेव एंड ये सब की कमांड्स है। यहाँ से हमारा मेन चालू होता है फीचर्स का सेट। ठीक है, ये है मेक प्रोजेक्ट का ऑप्शन। मेक प्रोजेक्ट बेसिकली क्या करता है कि जब तुम्हारा जो भी कोड वोड हो गया है, उसको रन करता है, रन करके एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। ये ऐप है, तुम्हें क्या चीज रन करनी है वो डिसाइड होगा। ये तुम्हारा डिवाइस है। फिर ये है एग्जैक्ट रन, एक्चुअल रन बटन। जब तुम्हारा कोड कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हें डिवाइस पे रन करना है, उसके लिए तुम ये वाली बटन दबाओगे, तो वो क्या करेगा, जो काम मेक करता है, पहले बिल्ड करेगा, बाइनरीज जनरेट करेगा, सब जनरेट करेगा, एंड देन उनको ओपन करके रन भी करेगा। कहाँ पे रन करेगा? ये जो तुमने डिवाइस सेलेक्ट किया होगा यहाँ पे, वहां पे। ठीक है, उसके बाद ये और ऑप्शन है, जैसे रन बाय अप्लाई चेंजेस। मान लो तुमने रन किया कोड, तुम्हारे डिवाइस पे रन हो रहा है, तुमने फिर यहाँ पे चेंज करके हाई का फिर से हेलो कर दिया। अब तुम फिर से पूरा बिल्ड करके, फिर से पूरा बिल्ड करके, बाइनरी जनरेट करके, फिर से पूरा प्रोसेस करोगे ये एक हेलो का हाई चेंज देखने के लिए? नहीं ना। तो उसके लिए होता है ये वाले ऑप्शन, अप्लाई चेंजेस एंड रीस्टार्ट एक्टिविटी। तो जो चेंज हुई होती है, सिर्फ वही चीज चेंज होके वापस से स्टार्ट हो जाता है पूरा ऐप। ठीक है, उसके बाद डिबग ऑप्शन है। डिबगिंग का तो लाइक जितने डिबगिंग ट्राई करी होगी बाकी सी प्लस प्लस वगैरह में, सेम वैसे ही होता है। हम एक ब्रेक पॉइंट सेट कर देते हैं, ब्रेक पॉइंट सेट करने के बाद हम एक वो डिबगिंग सेशन चालू कर देते हैं, और लाइन बाय लाइन कोड रन करके डिबग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आते हैं मेन ऑप्शन, सिंक प्रोजेक्ट विद ग्रेडल फाइल्स। अच्छा, तुमने देखा होगा यहाँ पे जब मैं रन करते हैं ग्रेडल बिल्ड रनिंग आता है, फिर सिंक आता है। तो वही चीज करने के लिए ये बटन होती है। कभी कभी तुम्हारा प्रोजेक्ट कभी रन नहीं होगा, कोड वोड सब सही होगा, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आएगा क्यों हो रहा है, तो तब तुम हो सकता है कि तुम्हारे ग्रेडल फाइल्स में कुछ एरर हो, तो उसके लिए सिंक करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजर ऐप। मान लो तुम लोग तो, अगर तुम लोग के पास फोन एंड्रॉइड फोन है, या तुम्हारे फोन सपोर्ट नहीं करता है, एंड्रॉइड फोन नहीं है, एंड्रॉइड फोन जो एंड्रॉइड वर्जन जो तुम डेवलप कर रहे हो उस पर सपोर्ट नहीं करता है, तो तुम्हें एक एमुलेटर नाम की चीज प्रोवाइड करता है गूगल, ताकि तुम उस वो एमुलेटर पे तुम अपना कोड रन करके चेक कर सको।
एमुलेटर एक्चुअली एक फिजिकल डिवाइस का वर्चुअल कॉपी टाइप कह सकते हो होता है, जो जिसपे तुम अपना नॉर्मल जैसे डिवाइस वर्क करता है उसी की तरह यूज कर सकते हो, वो होता है। एंड उसके बाद एसडीके मैनेजर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट मैनेजर। तो बेसिकली जो जो भी तुम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो उसकी तो उसका कुछ कोड बेस होगा, वो कैसे डेवलप करेगा वो सब कुछ एसडीके में आता है, ठीक है। ये है मेन ऑप्शंस हमारे हो गए हैं। अभी अब मैंने तुमको बताया एमुलेटर के बारे में। तो एमुलेटर काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास डिवाइस हर बार हो, या ज़रूरी नहीं कि वो डिवाइस कंपैटिबल हो। तो ये जो एमुलेटर है, वी कैन यूज दैट एमुलेटर टू रन आवर ऐप एंड चेक इट। सो एमुलेटर बनाने का प्रोसेस मैं तुमको दिखाता हूँ। ये डिवाइस मैनेजर खोलो। देखो मैंने 2 एमुलेटर्स बना रखे हैं पहले से, तो इनको हम यूज कर सकते हैं, बट मैं तुमको नया एमुलेटर बनाने का एक प्रोसेस बनाता हूँ। तो यहाँ पे जाओ, क्रिएट डिवाइस करो, ये स्क्रीन आएगी, ठीक है। अब इस स्क्रीन में ना ये बहुत सारे फोन के नाम दिख रहे होंगे, सुने होंगे तुमने, नेक्सस, पिक्सल, है ना। तो ये गूगल के जो फोन होते हैं, गूगल के खुद के हार्डवेयर, गूगल प्रोवाइड्स दी कॉन्फ़िगरेशंस फॉर दोज, सो दैट तुम इनको डायरेक्टली यूज कर सको। नहीं तो तुम खुद का भी कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो अपने हिसाब से, बट क्या करना, गूगल का पहले जब हमें स्टैंडर्ड फोन मिल रहा है अगर उसके कॉन्फ़िगरेशन, तो हम वी कैन यूज दैट, राइट। सो हम एक, चलो पिक्सल 5 ले लेते हैं। पिक्सल 5 पे ऑन एक एसडीके बना, एक वर्चुअल डिवाइस बनाते हैं जो पिक्सल 5 पे बेस्ड होता है। अभी जो सिस्टम इमेज आई है, इस सिस्टम इमेज एक्चुअली है क्या कि तुम्हारे जो वर्चुअल डिवाइस तुम बना रहे हो उसके सिस्टम पे कौन सा एंड्रॉइड वर्जन इंस्टॉल्ड रहेगा, ये चीज है, ठीक है। जैसे कि एंड्रॉइड नगेट चाहिए, ओरियो चाहिए, पाई चाहिए। मेरे पास अभी SV2 इंस्टॉल्ड है, एस एंड्रॉइड एस का वर्जन 2 डाउनलोडेड है, बाकी सब तुम्हें डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो अभी हम SV2 ही चूज कर लेते हैं, API नंबर 32 आ गए। यहाँ पे हम अपने इसको ऐप एमुलेटर का नाम दे सकते हैं, जैसे एमुलेटर न्यू, ठीक है। यहाँ पे नाम दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, एंड कर दो फिर फिनिश, ठीक है। एंड्रॉइड स्टूडियो तुम्हारे लिए एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करके दे देगा। बस इतना सा प्रोसेस है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, एमुलेटर चलाना काफी सिस्टम हैवी होता है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो वैसे ही हैवी सॉफ्टवेयर है, एंड एमुलेटर चलाना और हैवी हो जाता है। तो थोड़ा अगर तुम लोग देख लो तो सिस्टम अपना रिक्वायरमेंट्स एक बार चेक कर लेना, क्योंकि फिर बहुत स्लो हो जाता है सॉफ्टवेयर तुम्हारा। अभी हमने कोड तो देख लिया, एंड्रॉइड स्टूडियो सब देख लिया, पर कोड रन कैसे होता है ये तो हमने देखा ही नहीं। तो एक बार हम ट्राई करते हैं कि ये जो हमने हेलो वर्ल्ड ऐप है ना, हमारा हाई एंड्रॉइड ऐप, इसको अपन एक बार रन करके देख ही लेते हैं, है ना। एमुलेटर पे चला के देख लेते हैं कैसे चलता है, प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे चूज किया अपना पिक्सल 4 एक्सएल, एंड देन मैंने कर दिया क्लिक रन पे। तो अभी मैंने एमुलेटर चूज किया है, क्योंकि तो ये क्या किया एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर ने, एक एमुलेटर का वो चालू करेगा, सिस्टम इमेज, एंड देन उस पर ऐप इंस्टॉल करेगा। तो थोड़ा मैंने बताया काफी हैवी प्रोसेस होता है, तो लंबा हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना। आई विल सजेस्ट कि अगर तुम लोग का एंड्रॉइड डिवाइस हो तुम्हारे पास, अगर तुम लोग के पास एंड्रॉइड डिवाइस हो तो तुम उस पर ही करो। काफी इजी रहता है उसका प्रोसेस, काफी फास्ट रहता है उस पर रन करना। हाँ, बस तुमको थोड़ा सा सेटअप करना रहेगा अपने एंड्रॉइड डिवाइस को। उसमें बेसिकली ऐसा है कि तुम अपना एंड्रॉइड डिवाइस खोलो, डेवलपर ऑप्शन में जाओ। सब गए होगे, मेरे को पता है, एक दो बार कुछ ना कुछ रूट करने के लिए, कुछ करने सेटिंग चेंज करने के लिए गए तो होगी। तो वहां जाओ डेवलपर्स ऑप्शन में, एंड वहाँ यूएसबी डिबगिंग नाम का ऑप्शन होगा, उसको ऑन कर दो। उसको ऑन करने के बाद तुम अपने लैपटॉप से कनेक्ट करो। एक सिंपल वो आएगा, ऑप्शन आएगा, पे। तो यहाँ पे अलाउ कर दो अपने कंप्यूटर की फिंगरप्रिंट को। उसके बाद तुम्हारा, जैसे यहाँ पे हमारा एवीडी शो हो रहा है ना, वर्चुअल डिवाइस, उसी पे हमारा एंड्रॉइड का डिवाइस का नाम भी शो होने लगेगा, ठीक है। तुम डायरेक्ट उस पर रन कर सकते हो फिर। देखो ये दिख रहा है तुम लोग का एमुलेटर, है ना। ऐसे ही एक पिक्सल का, जैसे हमारा पिक्सल होता है रियल, उसी का एक ये वो है वर्चुअल कॉपी।
देखो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, बता रहा है अभी इंस्टॉल होने के बाद ओपन होगा। हेलो, ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा हेलो वर्ल्ड ऐप है, हेलो वर्ल्ड लिख के आ जाएगा, हेलो एंड्रॉइड लिख के आ जाएगा एक्चुअली। जब तक ये हो रहा है तब तक हम थोड़ा सा कोड अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो। तुम लोगों ने कोटलिन अभी नहीं पढ़ी है, बट आगे के सेशंस में या फिर होमवर्क में तुम्हें बताया जाएगा, पढ़ के आना एक बार। बेसिकली जो हमारा हो क्या रहा है इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन प्रिंट कर रहा है स्क्रीन पे, ये हमने हाई नेम लिखा है। ये नेम ले रहा है फंक्शन यूजर से, जहाँ पे पैरामीटर पास हो रहे फंक्शन में, और उसको प्रिंट कर रहा है। सिंपल है। जो भी हम यहाँ पे टेक्स्ट में चेंजेस करेंगे वो सारे चेंजेस यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, हम यहाँ पे टेक्स्ट कलर चेंज भी कर सकते हैं। ये अभी हाई एंड्रॉइड दिख रहा है तुम्हें? देखो टॉप पे थोड़ा सा, अब मैंने कलर चेंज कर दिया है। कलर चेंज करके फिर से रन कर लेते हैं। अभी हमने रन का ऑप्शन चूज किया था, अब अपन ने थोड़ा सा चेंज अप्लाई किया है। थोड़ा सा चेंज अप्लाई किया है, तो हम वही चेंज करके अप्लाई करके रन करने वाले हैं। पहले एरर एरर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एरर सॉल्व हो गया। अब हम रन कर लेते हैं चेंजेस के साथ। अच्छा, अपन ने ऊपर वाला मेन्यू तो देखा था, लेकिन नीचे वाले मेन्यू तो देखा ही नहीं। नीचे वाले मेन्यू में तो तुम्हें नाम सीधे सीधे पता चल ही रहा है क्या है क्या नहीं है। ये वर्जन कंट्रोल है। जब हम गिट यूज करते हैं तो वर्जन कंट्रोल में जो भी चीजें होती हैं गिट गिटहब, वो चेंज हो जाती हैं। मैंने कुछ गिट से इनिशियलाइज नहीं किया तो कुछ नहीं हो रहा। जब हम रन करते हैं ना, तो हर एक स्टेट, हर एक सेकंड का हर एक प्रोसेस जो है ना, वो यहाँ पे शो होता है हमारे डिवाइस में क्या चल रहा है। तो जब हमारा ऐप क्रैश होता है या कुछ होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले दिखेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है अपने ऐप की डिबगिंग वगैरह करने के लिए। तो ये चीज ध्यान रखना। हम टू डूज बना सकते हैं, वो लिस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। हमारे कोड में जो एरर है वो यहाँ पे आ जाती है डायरेक्ट। जैसे अभी ये बता रहा है लाइन नंबर 36 में एरर है। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल में अपन टर्मिनल पे भी कुछ कर सकते हैं चेंजेस। जब हम बिल्ड करते हैं तो जब वो बिल्ड हो रहा होता है तो क्या क्या प्रोसेस रन होती हैं, क्या क्या एरर आ रही है, वो सब चीजें यहाँ पे शो होती हैं। ठीक है, लॉकेट है, डिबगिंग वगैरह के लिए यूज होती है लॉकेट, जिसको पता होगा। वो यहाँ पे शो हो जाता है। अपन ने सारे ऑप्शन देख लिए हैं यहाँ पे अभी। रन करके भी देख लिया एक बार, एरर कर ला के भी देख लिया है, कहाँ शो होता है, क्या शो होता है, कब शो होता है। ठीक है, बेसिक हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो का हो गया है रन। अच्छा हाँ, स्टॉप करना हो तो यहाँ से स्टॉप हो जाता है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो का बेसिक सोल्यूशन। अब बाकी तुम लोग खुद भी ढूंढो। एंड्रॉइड स्टूडियो ऐसी चीज नहीं है कि मैं बता दिया हूँ तो अब तुमको सब आ जाएगा, अब सब कर लोगे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फीचर्स होंगे, तुमको खुद पता चलेंगे। तुम्हें पता चलेगा कि अकाउंट ऐड करके क्या क्या कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। और तुमको खुद खेल के, एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ खेल के ही पता चलेगा। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाकी
डाउट्स वगैरह हो चैट बॉक्स में डाल सकते हो, एंड अपन एक Q&A सेशन रख लेंगे डाउट्स वगैरह सॉल्व करने के लिए। किसी को कोई डाउट्स वगैरह है तो चैट बॉक्स में डाल दो अभी। कमांड लाइन टूल्स को डाउनलोड करना है क्या? कमांड लाइन टूल्स हेल्प कर सकते हैं तुमको काफी डेवलपमेंट में, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत प्री इंस्टॉल हो जाती है उससे। इंस्टॉल प्रोसेस PDF, हाँ इंस्टॉल प्रोसेस का मैं तुमको एक कोड लैब देता हूँ, वो काफी तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तुम वो कोड लैब फॉलो कर लेना, तुम्हारा पूरा इंस्टॉल प्रोसेस रन हो जाएगा। मैं चैट बॉक्स में डाउनलोड इंस्टॉल प्रोसेस कोड लैब की लिंक दे दे रहा हूँ, उसको फॉलो कर लेना, पूरा डाउनलोड हो जाएगा। कोटलिन जावा के डाउट्स, कोटलिन और जावा ज्यादा फर्क नहीं है, कोटलिन बस लैंग्वेजेस है, मेन काम तो वही है। Is it gives enough for Android to work? Depends on your system and other processors and other things. System requirements तुम्हें Android Studio की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, उसको चेक कर लेना। न्यू प्रोजेक्ट चूज करने से SD की प्रॉब्लम आ रहा है, काफी एग्जैक्ट प्रॉब्लम है भाई, ऐसे सॉल्व करने का एक एक डाउट्स नहीं हो पाएगा। मे बी तुमने SDKs इंस्टॉल नहीं किए होंगे, क्योंकि SDKs भी इंस्टॉल करने पे तुमने बीच में इंस्टॉलेशन रोक दी होगी मे बी, या ऑप्शन चूज नहीं किया होगा SDK इंस्टॉलेशन का, तो तब आ सकती है SDK प्रॉब्लम। या फिर तुम SDK को थोड़ा लेटेस्ट वर्जन चूज कर लो। कैन वी स्टार्ट कोडिंग नॉलेज ऑफ जावा? अभी अब पुलकित तुमको कोडलिंग के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देगा। तो कोडलिंग तुम्हारे काफी डाउट्स उससे भी सॉल्व हो जाएंगे। तो पुलकित, ओवर टू यू। फॉर दिस ऑसम सेशन। तो करेंटली अब हम बात करने वाले हैं कोटलिन की। जैसे कि अभी आपने एंड्रॉइड के बारे में देख लिया पूरा, तो बेसिकली शुरू में मैंने बोला था कि जो अपन प्रोग्रामिंग करने वाले हैं वो बेसिकली कॉटलिन से करने वाला है। तो अब आता है हमारे मेन कॉटलिन वाला पार्ट। तो आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माय स्क्रीन। तो करेंटली इसमें स्क्रीन विजिबल। सो बेसिकली ये जो लिंक है बेसिक कंपोज कैम्प की, ये आपको चैट बॉक्स में ड्रॉप हो जाएगी। It is basically none other than the basic, your layout, your pathway for Android development, your Android development with Compose. So currently यहाँ पे हम introduction to Kotlin पे जाएंगे। तो क्या चैट बॉक्स में लिंक ड्रॉप होगी? लेट मी चेक आउट। या इट इज। सो हियर वी आर। तो फर्स्ट 6 एक्टिविटीज हैं। अगर आपने गूगल डेवलपर प्रोफाइल नहीं बनाई है तो आप बना सकते हैं। इट इज वेरी बेनिफिशियल। यू विल गेट स्वैग्स पर्क्स, not actually swag perks. You'll get batches. Before you begin, take code labs. तो यहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि while developing a Compose app while using this framework, what are your prior experiences and what you should learn in Kotlin, especially in Kotlin. यहाँ पे टोटल 7 सेशंस हैं इंक्लूडिंग क्विजेस। तो आप
हर सेशन पे जा सकते हैं वहां का। These are basically documentation if you want to work on Compose with the Kotlin framework, with Kotlin language, sorry. तो basically इसके perks ये हैं कि when you have completed this all 7 sessions and you have taken the quiz, if you are successfully have completed all these quiz answers, you can get batches. तो अगर आप गूगल डेवलपर प्रोफाइल के साथ ऐसे फैमिलियर नहीं है तो बैचेस बेसिकली वो चीज होती हैं जो आपको गूगल ऐसे प्रोवाइड करता है। इफ यू कंडक्ट एनीथिंग एज ए डेवलपर ऑन गूगल डेवलपर वेबसाइट, तो ये जो बैचेस होते हैं इनका कोई मटेरियलिस्टिक वैल्यू नहीं होती है, इनकी कोई पर्क्स नहीं होते हैं, पर ये ऐसी अच्छी चीज होती है यार फ्लेक्स करने के लिए। इफ यू आर ए डेवलपर एंड यू हैव समथिंग यू हैव अर्नड एज ए डेवलपर, इट इज अ वेरी बिग थिंग टू फ्लेक्स। सो सेम कैन बी सेड फॉर दीज बैचेस। तो जो वेबसाइट है उस पर आपको एक बेसिक लेआउट मिल जाएगा, एक बेसिक एंड्रॉइड बेसिक विद कंपोज कि इसका टाइटल यही है। तो यहाँ पे आपको एक लेआउट मिल जाएगा, एक पाथवे मिल जाएगा कि आपको कंपोज अगर शुरू करना है तो आप कौन सा पाथ फॉलो कर सकते हैं। और साथ में अगर हम बात करें कि व्हाट अबाउट बेसिक्स ऑफ कॉटलिन, so I have to bring another screen for that. Here it comes. So many screens, guys. Yeah. तो ये वाली kotlin-lang.org के बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इफ यू आर ए डेवलपर, इफ यू आर ए कोडर, यू आर ए प्रोग्रामर और एनीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर स्टफ। तो यहाँ पे आपको कोटलिन का बेसिक से हाई लेवल तक के सारे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे। तो चलो यार कोटलिन, if you want to dive into programming, if you want to dive into development, especially Android development, a language is mandatory. तो जैसे कि आप HTML वेब डेवलपमेंट बिना एक लैंग्वेज पकड़ के शुरू कर सकते हैं, same cannot be said for Android development. You need to be good at language. So let me ask one thing. Do anybody know about what are variables? Variables. Can anybody say what are actually ना chat box में वो थोड़ा मैसेज हो जाएगा। तो वेरिएबल्स, हाँ, कंटेनर्स, तरुण परमार ने बोला कि मेमोरी लोकेशन, हाँ, वेरिएबल्स बेसिकली आपका डाटा स्टोर करने का काम करते हैं। तो हम अगर कोटलिन पूरा कवर करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और किसी वक्त डेटा भी नहीं होगा कि एक पूरी इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन या एक मीट अटेंड कर सके। तो बेसिकली आज हम केवल 2 चीजें देखेंगे। पहली होगी वेरिएबल्स, और देखेंगे भी नहीं, बस मैं उसका एक ओवरव्यू दूंगा कि वेरिएबल क्या होते हैं और साथ में फंक्शन क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आप करंट वेबसाइट लिंक फ्लैश kotlin-lang.org उसके डॉक्स पे जाएंगे तो आप यहाँ पे कोई ऐप रन करके उसको एट टाइम्स यहीं पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट भी करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूंगा हेलो VDSC, तो कंपाइलर की जरूरत नहीं है, सीधे यहीं पे कंपाइल करो और रन भी कर लो। एज इजी एज दैट, नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज CAPP। तो वेरिएबल्स वही होते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रिंट करा रहे हैं पर हम एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। और अगली चीज आती है फंक्शंस। फंक्शंस बेसिकली कंटेनर्स ही होते हैं ऑफ स्पेसिफिक कोड्स व्हिच आर एग्जीक्यूटेड व्हेन रिक्वायर्ड। तो जो अपनी कोटलिन होती है उसमें जो फंक्शंस होते हैं वो FUN से डिवाइड होते हैं। FUN मतलब फन नहीं, फंक्शन का शॉर्ट। तो बेसिकली फंक्शंस यही होते हैं। और यहाँ पे भी आप क्या कह सकते हैं, एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो फन मेन है एज अदर लैंग्वेज में होता है, जो मेन फंक्शन होता है वो इस तरीके से डिफाइन होता है। और यहाँ पे जो फन सम है तो उसको आप फन मेन में एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम यहाँ पे a-b भी कर सकते हैं या a×b भी कर सकते हैं। मैथमेटिक ऑपरेटर तो पता होंगे, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो लगती है बेसिक। मेरा ये कोटलिन के बेसिक्स बताने का मतलब ये है कि इफ यू वांट टू डाइव इनटू ए डेवलपमेंट, स्पेशली एंड्रॉइड डेवलपमेंट, यू नीड टू बी गुड एट प्रोग्रामिंग, because if you are not good at programming or if you didn't know programming, Android is a hectic job really, but if you know it, it is a piece of cake. Let me run it. Wow, 3 and 5 sum is 15. It is as easy as that. But if you print in a code, it is a very delighted thing. This thing really delights you. So now हमने वेरिएबल फंक्शन कवर कर रहे हैं और जैसे मैंने पहले बोला था कि हम पूरी चीजें करेंटली कवर नहीं कर सकते कोटलिन, बिकॉज कोटलिन इज ए वेरी वास्ट थिंग इन इटसेल्फ। तो
बस इतना ही था। अगर Kotlin नहीं, अब अपन ऐसा करते हैं कि फाइनली एक बहुत ज्यादा अपन ने सीख लिया। नाउ लेट्स डू ए फन एक्टिविटी एज मेंशन्ड। स्टॉप शेयरिंग। So it's time for our fun activity. तो करेंटली क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे स्लाइड पे हूँ। अगला आता है इफ बिग फॉर स्मॉल देन एप्पल फॉर। ये दो डैशेस हैं, तो इसमें आपको फिल करना है। मतलब इफ बिग फॉर स्मॉल देन एप्पल फॉर। आई वुड लाइक टू सी द चैट बॉक्सेस। या वेरी गुड। एंड्रॉइड, एनी मोर रिस्पॉन्सेस? एंड्रॉइड सीड्स। एंड्रॉइड। Yeah, it was absolutely right. It was Android because no, मैं एप्पल वाला जोक ना क्रैक कर रहा हूँ। छोड़ो। So now come the next thing. If Skype for blue, then Android for green. Nice. Green. Yeah, everybody knows that. Android सब यूज कर रहे हैं, अच्छी से देसी प्रेजेंटेशन सबने। Now one more. If salt for food, then dash for Android. Yeah, it is not that difficult. Yeah, Kotlin student developer suite. Yeah, ये तो वेरिएबल क्वेश्चन था, ऐसे कई सारे आंसर्स आएंगे इसके। Kotlin. Yeah, good. One more is there. If poison for man, then dash for Kotlin. इसका भी वेरिएबल आंसर ये है। No poison, no React, man, no Java. They are just counterpart. They are bug, right? Bug. HTML. अच्छे से देखो, पॉइजन मैन के लिए जो करता है, Kotlin के लिए वो चीज क्या करती है? जावा Kotlin को नहीं मारता, ना HTML मारता है, वेब भी नहीं। बग एंड एरर्स, क्रैश, राइट? और वेरिएबल आंसर अगेन similar to that. Now one more thing comes into play, that is if JavaScript for web, then dash for Android. Again, Java Android, yeah, Java Kotlin, sorry. This was easy peasy. If turbo for C++, then dash for Android. Variable answer, है ना? Turbo, C, Android Studio, IDE. Good. अच्छे से लिया सबने सेशन यार, दिख रहा है। Now next thing comes into play. So हमारा जो interactive session था, we have 1.5 hours for our session. So now let's assign some homework to you guys. तो currently जो हमने अभी आपको Kotlin, Android, ये तो मैं जानता हूँ कि एक सेशन में if you don't have a healthy internet connection, or even if you have, it is not possible to install Android Studio and handle all the Gradle problems. तो अगले बार जब हमारा अगला सेशन होगा related to Compose Camp and Android, you need to do one work. That is, yeah, LOL liked it. Yeah, very good. So you need to do one thing, कि आपको नेक्स्ट सेशन तक आएंगे तो you need to have Android Studio in your device, because without that ID, it is not possible to run Android apps, Compose, and etc. stuff. Okay, so one more homework. It is not just one homework. The basic, you need to go through the basic syntax of Kotlin, because I've already said it is not possible to learn a development, especially Android development, if you are not good at programming language. And here we are talking about Kotlin. So links drop हो गई थी, या फिर मैं एक बार drop कर दूं kotlinlang.docs की? Yeah, I would like to drop once again.
Our Kotlin Lang docs, a basic documentation for Java. No, sorry, Kotlin. And one more thing, that is our basics of Compose Camp. I would like to drop that link as well. That is, let me check, where is the link, man? Yeah, here it is. तो इसका जो यूनिट 1 है कंपोज कैम्प के बेसिक्स का, उसका यूनिट 1 आप ट्राई करें कंप्लीट करने की, क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दी 7 सेशंस यू विल गेट बैच एज वेल, बिकॉज दोस बैच आर वर्थ फ्लेक्सिंग. So that's it for homework. Now I would like to let you know about our next session, which will be unit 2, which will be session 2, which would be on 26 September 2022, means परसों मंडे के दिन. तो उस सेशन में आप मतलब जो आज का होमवर्क था, अगर आपने आज का होमवर्क अच्छे समझा है, तो जो 26 को सेशन होने वाला है उसमें you will be very familiar, you will be very comfortable with all the things that are going to be fed into your mind. So next session is on 26 September, that is Monday, and now that's it. Thank you. I would like now to hand over to you, Khushi ma'am. You can continue. Hello. Khushi ma'am. Hello. Wait a second, she is coming. Okay. जब तक मैम आ रही हैं तब तक बताओ कुछ डाउट आया, डाउट या फिर Q&A related to anything programming. Sir, can we choose between Kotlin or Compose or just Compose? तो नहीं, Kotlin Compose अलग चीजें नहीं है. Kotlin is a programming language and Compose is just a framework for Kotlin. तो पहले क्या होता था कि आपको दो फाइल्स मिलती थी, मतलब करेंटली भी होता है. पहले की क्या बात है, एक XML फाइल जिसमें आप कोड लिखते थे जिससे कि ग्राफिक वाली चीजें बनती थी, और Kotlin में आप उसी का एक फंक्शनैलिटी डालते थे. पर करेंटली जैसा फ्लटर में होता है कि आपको कोड फाइल में आपका लेआउट भी बनाना है, साथ में आपको उसकी प्रोग्रामिंग भी उसी में लिखनी है. तो कंपोज बेसिकली आपका जो लेआउट है उसको Kotlin की मदद से बनाने में मदद करता है. इट इज बेसिकली दैट. What is println? Very good question. Println is a programming language. It is basically a printing function in Java. Timings of class on 26. I didn't know about that. You'll be notified by that. Development in DSA. I believe कि जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो आप जब आप अच्छे से डेवलपमेंट करते हैं तो आपके DSA के काफी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं, है ना. 8 gigs of RAM, yeah, it will run smoothly. Next session. Is there any WhatsApp group for information about this workshop? That I cannot decide. कि आप बोल सकते हैं कि बन सकता है तो बन जाएगा. Kotlin without having knowledge of Java. Can I learn Kotlin without having knowledge of Java? Yes, you can learn, but I would prefer to go with Java first because Java is Java and Kotlin is Kotlin. ये बुरा आंसर था ये तो. Which is best, Windows or Linux? Same specification लैपटॉप की ज्यादा बेटर कौन सा है, विंडोज और लिनक्स? डिप्लोमेटिक आंसर दोनों अच्छे हैं, पर मैं सीरियसली बोलूं तो आप विंडोज के साथ जाइए, क्योंकि विंडोज का जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है. कि अगर विंडोज में आपको कोई एंड्रॉइड रिलेटेड एरर आएगा तो उसके लिए विंडोज ज्यादा स्पेसिफिक रहेगा, और आपके पास वाले भी विंडोज चलाएंगे तो यू विल बी कंफर्टेबल अराउंड दैट OS. Will i5 10th generation? Yeah, it will work. Web dev versus app dev, debatable topic. Let it be. Yeah, you can learn Kotlin easily if you are good at C++, because C++ is very difficult and Kotlin is comparatively easy. Semicolon नहीं होता है यार, क्या बताएं. Live preview is better than testing app on emulator. Yeah, live preview is a advantage of programming
of Android development. Same cannot be said for Flutter. Satyam Sharma, sir, I know C++, so I learn Kotlin, or I have to learn Java before Kotlin. Satyam Sharma, you can. Okay, so Rudra, would you like to say something else? यार स्पेसिफिकेशन पूछ रहे हो कि हाँ रुद्र प्लीज ठीक है. what exactly is a Gradle file? What exactly is a Gradle file, Rudra? Hello? क्रेडल फाइल. अरे क्रेडल फाइल एक्चुअली तुम्हारे डिपेंडेंसीज जो तुम्हारे एंड्रॉइड में जो भी तुम काम कर रहे हो उसके लिए वो लोड करके रखती है. जैसे कि तुम एंड्रॉइड में कर रहे हो तो तुम एंड्रॉइड प्रोजेक्ट बन रहा है, फिर वो उसकी बाइनरी बनेगी लिनक्स के लिए, एंड वो लिनक्स तुम्हारे एंड्रॉइड में जो अडेप्टेशन हुआ है वो चेंज हो रहा है. तो उन सब के लिए अलग अलग डिपेंडेंसी, अलग अलग चीज़ें चाहिए, अलग अलग क्या कहते हैं उसे, अलग अलग तुम वो यूज़ कर रहे हो एपीआई वगैरह, तो उसके जो जहाँ पे उनका कोड स्टोर्ड है उसकी लोकेशन चाहिए, वो सब स्टोर करके रखता है ग्रेडल वगैरह. मतलब तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो होता क्या है अभी के लिए. तो बस और again I would like to remind अनुभव आशीष, एंड्रॉइड डेवलपमेंट कोर्स विद कंपोज और कोटलिन अलग नहीं है. कंपोज के लिए तुम्हें कोटलिन आनी चाहिए, एंड कंपोज बस यूआई डेवलपमेंट का एक नया फ्रेमवर्क है. कोटलिन तो तुम्हें फिर भी बैकएंड के लिए यूज करनी ही पड़ेगी, तो यू कैन चूज आइदर ऑफ देम. Kotlin. My friend, a documentation is enough, but a single unit is not enough to learn any programming language, क्योंकि programming language बहुत ज़्यादा deep और बहुत ज़्यादा बड़ी होती है. तो enough तो पूरी के लिए नहीं है, but अगले सेशन के लिए वो enough है, क्योंकि अगले सेशन में फिर यूनिट 2 मिलेगा तो उसको पढ़ना, तो that would be enough. How did you get your internship? I would like to ask the same question, Rudra. How did you get your internship? इंटर्नशिप कंपनी आई, पेपर दिया, इंटरव्यू लिया, हो गई. Nice, good story. Yeah, you shall refer to documentation, Aman. Okay, Kushi ma'am, if anything else left for the session? Hello everyone. This is Kushi Trivedi, GDSC founder and lead of LNCTS College. I am so excited that this session was actually very, very successful. We also have 3 more sessions coming up for this, Android Study Jam, Jetpack Compose Camp. So I'm excited for that too. And I just hope you guys complete it till end, because this is going to be really exciting for the certificates and swags. So make sure you make up till the end. And thank you so much for being till the end of this session. It was really nice. We will try to, solve all of your doubts. So try reaching out the Discord or WhatsApp or Telegram or whatsoever community channels or groups your GDSC has, and we'll try to, figure out every detail of it. Thank you so much, Pulkit and Rudra. You were the best speakers, and thank you so much everyone for joining. Thank you, and I think we're here for. I think it's the end of the session, so it would be good if everyone starts leaving. So, is it fine, guys? Rudra, Pulkit? Yes, I guess. Yeah, thank you so Yes. much, everyone. And thank you so much to you guys. You were the great speakers, okay? So, kudos to you. Please start leaving, everyone.